Hello, welcome friends, me Anila. The topic of my discussion is calculation on titration between oxalic acid and potassium permanganate. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों पिछली वीडियोस में मैंने आपको ऑक्सैलिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट के दरमियान रिएक्शन की इक्वेशंस बैलेंस करना सिखाई थी। इस वीडियो में मैं आपको इनकी कंसंट्रेशन एनालाइट की फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। 16 protons plus 2 MnO4 negative plus 5 C2O4 2 negative gives us 2 Mn plus 2 plus 10 carbon dioxide plus 8 water molecules. This is a balanced equation for potassium permanganate and oxalic acid. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हैं, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड है दोनों साइड्स पे। यहाँ पे एटम्स भी बैलेंस हैं, 16 हाइड्रोजन दोनों साइड्स पे हैं, मैंगनीज भी दोनों साइड पे 2 हैं, कार्बन भी दोनों साइड पे 10 हैं, ऑक्सीजन भी दोनों साइड पे 28 हैं। तो ये एक बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन है। Potassium permanganate is a oxidizing agent, whereas oxalic acid is reducing agent. Potassium permanganate has changes its oxidation state from +7 to +2. That means reduction occurs. On the other hand, oxalate has changes its oxidation state from +6 to +8. That is oxidation occurs. इस रिएक्शन की हमें कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट मालूम करनी है। Example number 1. We have to find percentage of oxalic acid in 100 ml sample when 10 ml of this solution is titrated against 0.02 molar KMnO4. Volume of KMnO4 used is 15 ml. हमें ऑक्सैलिक एसिड की परसेंटेज 100 ml सैंपल में मालूम करनी है जब इसके 10 ml को टाइट्रेट किया अगेंस्ट 0.02 मोलर पोटेशियम परमैंगनेट which is the concentration of KMnO4. Volume of KMnO4 used is 15 ml. We know that oxalic acid is to KMnO4. हम जानते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 में 5:2 का मोल रेशो है, मीन्स 5 moles oxalic acid will react with 2 moles KMnO4. We know that C1V1 is equal to C2V2, where C1 is the concentration of oxalic acid, V1 is the volume of oxalic acid, C2 is the concentration of potassium permanganate, V2 is the volume of potassium permanganate. तो C1 कैलकुलेट करने के लिए हम 0.02 मोलर which is the concentration of KMnO4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 15 ml वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 10 ml वॉल्यूम ऑफ सैंपल लिखेंगे। चूंकि मोल रेशो 5:2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बनती है 0.075 मोलर। इन मोलैरिटी कंसंट्रेशन है 0.075 मोलर ऑक्सैलिक एसिड। 0.075 molar means 1000 ml solution has 0.075 moles. So 10 ml solution has
मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये बनते हैं 7.5 एक्सपोनेंट -4 मोल्स। अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अमाउंट इज इक्वल टू 7.5 exponent -4 moles into 126 gram per mole is equal to 0.0945 gram per 10 ml। तो ये अमाउंट निकलती है 0.0945 ग्राम इन 10 ml solution, where 126 gram per mole is molecular weight of oxalic acid, जबकि 126 ग्राम पर मोल ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है। ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे H2C2O4 डॉट डाइहाइड्रेट मीन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे, 2 इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 is the atomic weight of hydrogen, plus 2 is the number of carbon, into 12 is the atomic weight of carbon, plus 4 is the number of oxygen atoms, into 16 is the atomic weight of oxygen, plus 2 is the number of water molecules, into 18 is the molecular weight of water। तो सॉल्व करने के बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट बनता है 126 ग्राम पर मोल। क्योंकि 10 ml solution has 0.0945 grams oxalic acid, so 100 ml has, तो हम 0.0945 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये बनता है 0.945 grams। So percentage of oxalic acid is 0.945%. So this is the percentage of oxalic acid in a sample. Example number 2. We have to find concentration of KMnO4 in normality when 10 ml of 0.1 molar oxalic acid is titrated with 10 ml of KMnO4 solution। इस एग्जाम्पल में हमें KMnO4 की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी में निकालनी है, जबकि 10 ml of 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड को टाइट्रेट किया है 10 ml KMnO4 सॉल्यूशन से। तो एंड पॉइंट होगा कलरलेस टू पिंक। तो हमें KMnO4 की कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी मालूम करनी है। We know that KMnO4 is to oxalic acid 2:5। हम जानते हैं कि KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड का मोल रेशो 2:5 है। पिछली एग्जाम्पल में हमने ऑक्सैलिक एसिड निकाला था, इस एग्जाम्पल में हम पोटाशियम परमैंगनेट निकालेंगे। We know that C1V1 is equal to C2V2, where C1 is the concentration of KMnO4, V1 is the volume of KMnO4, C2 is the concentration of oxalic acid, V2 is the volume of oxalic acid। तो C1 कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यूज रखेंगे 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 ml से जो ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय 10 ml जो KMnO4 का वॉल्यूम है। चूंकि 2:5 का रेशियो है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर बनता है 0.04 मोलर KMnO4। ये KMnO4 0.04 मोलर है, मोलैरिटी में कंसंट्रेशन है, इसे हमें नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 निकालेंगे।
1 is the number of potassium into 39 is the atomic weight of potassium plus 1 is the number of manganese into 55 is the atomic weight of manganese plus 4 is the number of oxygen atoms into 16 is the atomic weight of oxygen. उसको सॉल्व करेंगे तो 158 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4। चूंकि हमने मोलैरिटी ऑफ KMnO4 को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट करना होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 कैलकुलेट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 5 से, तो बनता है 31.6। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 बनता है 31.6। यहाँ पर 5 हमने इसलिए रखा क्योंकि KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये खुद रिड्यूस होता है तो ये +7 से +2 में जाता है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5, इसलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 31.6 इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। Because Mn has changes its oxidation state from +7 to +2, so change in oxidation state is 5. We know that, अब हम यहाँ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। We know that normality into equivalent weight is equal to molarity into molecular weight of KMnO4. Normality into 31.6 is equivalent of weight of KMnO4 is equal to 0.04 molar is the concentration of KMnO4 in molarity into 158 gram per mole is the molecular weight of KMnO4। सॉल्व करने पे आंसर आएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.2 नॉर्मल KMnO4। तो सैंपल की नॉर्मेलिटी आती है 0.2 नॉर्मल KMnO4। In this way, we can find concentration of analyte in redox titration. इस तरह redox titration में हम concentration of analyte, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो, उसकी concentration मालूम कर सकते हैं। एंड पॉइंट इज कलरलेस टू पिंक होता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तब कमेंट्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।